eTeacher is my YouTube channel, so subscribe my YouTube channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का सेकेंड ईयर का कोर्स है इंग्लिश, जो कि एसएसटी जनरल प्रिपरेशन के लिए है। चलो देखते हैं, इसी वीडियो में स्टार्ट से लेते हैं। इंशाल्लाह मुकम्मल असबाक यानी लेसन्स और एक्सरसाइज पर मुश्तमिल ये कोर्स यूनिक कोर्स है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। पहला स्टार्ट से इंग्लिश MCQ सेकेंड ईयर गवर्नमेंट बुक से लिए गए हैं। इंग्लिश MCQ सेकेंड ईयर यानी क्लास सेकेंड ईयर यूनिट 1 ये स्टार्ट करेंगे। सीरत तैयबा एंड मुस्लिम यूथ। लेट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1, अकॉर्डिंग टू सूरा अल-अहज़ाब वर्स 21 द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज़ यानी अ गुड मॉडल टू फॉलो, अ गुड मॉडल टू फॉलो। क्वेश्चन नंबर 2, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज डिसाइडेड इन अहदीस ऑफ सही बुखारी इज़ द लास्ट। क्वेश्चन आंसर ऑप्शन नंबर बी, द लास्ट ब्रेक कंप्लीटिंग द हाउस ऑफ प्रॉफिटहुड। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम बढ़ते हैं। द डिसीजन द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिसीजन बिफोर द बैटल ऑफ ओहद शोज हिज रिस्पेक्ट फॉर यूथ पैशन एंड ओपिनियन। क्वेश्चन नंबर 4, who was appointed by the Rasul sallallahu alaihi wasallam to lead the army against the Romans after the battle of Mauta? Hazrat Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Question number 5, the titles Al-Amin and Al-Sadiq were given to the Rasul sallallahu alaihi wasallam because of his nobility, truthfulness and honesty. Question number 6, at what age did the Rasul sallallahu alaihi wasallam accompany his uncle on a trade journey to Syria? Yani 12 years. Number 7, which peace committee did the Rasul sallallahu alaihi wasallam join in his youth? Helpful Fuzul. Question number 8, at what age did the Rasul sallallahu alaihi wasallam resolve the dispute of placing the black stone Hajarul Aswad? 35 years. आगे बढ़ते हैं। चलो इसको मिटाते हैं। According to the hadith narrated by Abu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, the Rasul sallallahu alaihi wasallam, if you do not feel ashamed then do whatever you like। ये क्लास सेकेंड ईयर की स्टार्ट की जो चैप्टर हैं उनकी असबाक से लिया गया MCQs है, ठीक है ना। आज का जो स्मार्ट स्टडी है ये MCQs बेस पर होगा, तो आप इसको गौर से देखें और इनसे नोट्स बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिक्लेयर्ड हाया यानी मोडेस्टी टू बी अ पार्ट ऑफ फेथ। ये वाला दुरुस्त आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, डिस्पाइट बीइंग ऑफर्ड ट्रेजर्स ऑफ द वर्ल्ड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूज अ लाइफ ऑफ सिंप्लिसिटी एंड ऑस्टेरिटी। ये वाला दुरुस्त आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु टेस्टिफाइड दैट द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेवर, ये सी वाला ऑप्शन जो है ये दुरुस्त है, ठीक है ना। स्कॉल्डेड हिम हार्शली एंड 10 years ऑफ सर्विस। Question number 13, according to Surah Al-Imran verse 31, Allah's love and forgiveness can be achieved by following the messenger। ये वाला दुरुस्त आंसर है। Question number 14, according to Surah Al-Hashr verse 7, Muslims are commanded to, जवाब जो है वो take what यानी ए वाला ऑप्शन, the messenger gives and abstain from what he forbids। आगे बढ़ते हैं। The youth are considered the backbone of the Ummah। Question number 16, what title was the given to the Prophet sallallahu alaihi wasallam due to his honesty and truthfulness even before prophethood? Al-Sadiq and Al-Amin। Question number 17, in which battle did the Prophet sallallahu alaihi wasallam follow the opinion of youth to fight outside Medina? Battle of Uhud। Battle of Uhud। 18, what did the Prophet sallallahu alaihi wasallam declare as an integral part of faith? Modesty। Question number 19, who narrated the hadith, if you do not feel ashamed then do whatever you like? Abu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu। Question number 20, for how many years did Anas radhiyallahu ta'ala anhu serve the Prophet sallallahu alaihi wasallam? 10 years। Question number 21, which surah states, say O Prophet, if you really love Allah then follow me, Allah will love you and forgive your sins? Yani Surah Al-Imran। Question number 22, the Prophet sallallahu alaihi wasallam preferred which lifestyle despite having access to the treasures of this world? Simple and austere। Question number
23. Sometimes no fire was lit in the Prophet ﷺ house for a month due to simplicity and scarceness of means. Question number 24. The Quran attaches Allah's love and forgiveness with following the messenger sallallahu alaihi wasallam. 25. The main message for Muslim youth in the lesson is to take Rasul sallallahu alaihi wasallam rule model. 26. In which battle the Prophet sallallahu alaihi wasallam preferred a teenager over most respected elders like Umar radhiyallahu ta'ala anhu and Battle of Mu'tah. Question number 27. What was the meaning of the peace committee Halful Fuzul formed by the youth of Arabs? The league were chose. 28. Why was Halful Fuzul formed? To uphold justice and protect the oppressed. 29. Prophet sallallahu alaihi wasallam always adhered to simplicity and austerity. 30. Select the correct spelling. Embodiment, ये करेक्ट स्पेलिंग है. चलो आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 31. सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग. ऑस्टेंटेशन ये करेक्ट स्पेलिंग है. द सिनोनिम ऑफ प्रोफ्यूजली, सिनोनिम मीन्स मुतरादिफ. यहाँ पर सिनोनिम मुतरादिफ को कहते हैं, ठीक है ना. यहाँ पर प्रोफ्यूजली का मतलब है कसरत से, यानी एबंडेंटली. ये इंतहाई अहम टॉपिक्स है, ठीक है ना. द एंटोनिम ऑफ प्रोफ्यूजली कसरत से यानी स्केर्सली. द सिनोनिम ऑफ लॉफ्टेस्ट आला, हाईएस्ट, ठीक है. ये हाईएस्ट वाला ऑप्शन दुरुस्त है. द सिनोनिम ऑफ बेकन, चराग. बेकन मीन्स चराग को कहते हैं यानी सिग्नल. क्वेश्चन नंबर 36. द एंटोनिम ऑफ बेकन, डार्कनेस को कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 37. द सिनोनिम ऑफ एस्टीम, इज्जत यानी रिस्पेक्ट भी इज़्ज़त को कहते हैं, एस्टीम भी इज़्ज़त को कहते हैं, यानी दोनों आपस में मुतरादिफ है. मुतरादिफ वो वर्ड्स होते हैं जो मानी के लिहाज से एक जैसे हो लेकिन स्पेलिंग के लिहाज से डिफरेंट हो. 38. द सिनोनिम ऑफ रिपोज्ड, सुकून पाया, रेस्टेड, ठीक है. द एंटोनिम ऑफ रिपोज्ड, डिस्टर्ब्ड. क्वेश्चन नंबर 40. द सिनोनिम ऑफ रिवेरेंस, अकीदत यानी रिस्पेक्ट. क्वेश्चन नंबर 41. द सिनोनिम ऑफ एक्सपीडिशन, मुहिम, जर्नी. 42. द सिनोनिम ऑफ एवेंज, बदला लेना. एवेंज नहीं, रिवेंज है, ठीक है ना. ये स्पेलिंग में मिस्टेक हो चुका है लेकिन ये रिवेंज है, बदला लेना. अच्छा, एवेंज बदला लेना, रिवेंज भी बदला लेना, ठीक है. दोनों एक ही मानी है, सिनोनिम. द एंटोनिम ऑफ एवेंज, बदला लेना, फॉरगिव, माफ़ करना, ठीक है. द सिनोनिम ऑफ डिग्निफाइड, बाइज़्ज़त, नोबल, शरीफ यानी बाइज़्ज़त. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. द सिनोनिम ऑफ सबलाइम, अजीम यानी एग्जॉल्टेड. द सिनोनिम ऑफ प्रीवेलेंट, राइज, कॉमन. द एंटोनिम ऑफ प्रीवेलेंट, राइज यानी रेयर. द सिनोनिम ऑफ एडहेरेंस, पाबंदी, अटैचमेंट. द सिनोनिम ऑफ स्टर्न, सख्त यानी स्ट्रिक्ट. द सिनोनिम ऑफ ट्रस्टवर्दी, काबिल एतमाद यानी रिलायबल. द सिनोनिम ऑफ रेक्टिट्यूड, रास्तबाज यानी रास्तबाजी, ऑनेस्टी. द एंटोनिम ऑफ रेक्टिट्यूड, रास्तबाजी का एक एंटोनिम क्या होगा? मुतजाद, जिसको हम कहते हैं करप्शन. द सिनोनिम ऑफ पायस, नेक यानी रिलीजियस. द एंटोनिम ऑफ पायस, विकेट, शैतान. द सिनोनिम ऑफ लीग, इत्तेहाद, एलायंस. द एंटोनिम ऑफ लीग, इत्तेहाद को मुतजाद, रिवेलरी. द सिनोनिम ऑफ लेग यानी पीछे रह जाना, फॉल बिहाइंड. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 58. द एंटोनिम ऑफ लेग, लीड, ठीक है. द सिनोनिम ऑफ स्ट्राइफ मीन झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट. द एंटोनिम ऑफ स्ट्राइफ, झगड़ा, पीस, अमन को कहते हैं. द सिनोनिम ऑफ सजेशियसली, दनाई से यानी वाइजली. द एंटोनिम ऑफ सजेशियसली, फॉलिशली, बेवकूफ़ी से, यानी आपस में मुतज़ाद है. द सिनोनिम ऑफ इंस्पायरेशन, हौसला अफजाई, एनकरेजमेंट. 64. द एंटोनिम ऑफ इंस्पायरेशन, डिस्करेजमेंट. द सिनोनिम ऑफ वाइब्रेंट, जिंदादिल यानी लाइवली. द एंटोनिम ऑफ वाइब्रेंट, जिंदादिल, डल. द सिनोनिम ऑफ डायनामिक, फॉल, एक्टिव. 68. द सिनोनिम ऑफ ऑब्सक्योर, मुबहम, अनक्लियर, शक व शुबहात में हो. द एंटोनिम ऑफ ऑब्सक्योर, मुबहम, क्लियर. द सिनोनिम ऑफ एंडोलेंट, सुस्त, लेजी. द एंटोनिम ऑफ एंडोलेंट, सुस्त यानी एक्टिव. ये आपस में मुतज़ाद है. आगे बढ़ते हैं. 72. द सिनोनिम ऑफ वेगुअर, ताकत यानी स्ट्रेंथ, ठीक है. द सिनोनिम ऑफ अनप्लिफ्ट, बुलंद करना, एलिवेट करना, ठीक है. 74. द सिनोनिम ऑफ एम्बॉडीमेंट, मजहर, पिक्चर यानी रिप्रेजेंटेशन. 75. द सिनोनिम ऑफ मोडेस्टी, इनकिसारी, ह्यूमिलिटी. द एंटोनिम ऑफ मोडेस्टी, प्राइड. द सिनोनिम ऑफ चेस्टिटी, पाकदामनी, प्योरिटी. द एंटोनिम ऑफ चेस्टिटी, पाकदामनी, एमोरलिटी. ये मुतज़ाद है आपस में. द सिनोनिम ऑफ विनिटी, गुरूर, प्राइड. द एंटोनिम ऑफ विनिटी यानी ह्यूमिलिटी.
The synonym of ostentation दिखावा showness. The antonym of ostentation दिखावा यानी simplicity. The synonym of austerity सादगी यानी किफ़ायतशारी simplicity को कहते हैं. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. 84. The antonym of austerity सादगी किफ़ायतशारी यानी luxury. The synonym of scantness कमी यानी insufficiency. The antonym of scantness कमी यानी abundance. The synonym of affection मोहब्बत यानी love. 88. The antonym of affection यानी मोहब्बत hatred नफरत. 89. The synonym of scolded डांटा rebuked. 90. The antonym of scolded डांटा praise तारीफ करना. The synonym of testifies गवाही देना confirms. 92. The antonym of testifies गवाही देना denies. 93. The synonym of sublime अजीम बुलंद यानी grand. 94. The antonym of sublime अजीम बुलंद यानी ordinary. 95. The synonym of benevolent नेकदेल यानी kind. The antonym of benevolent नेकदेल यानी cruel. ठीक है, चलो आगे एक्सरसाइज है, इसको भी देखते हैं. एक्सरसाइज में प्री राइटिंग स्ट्रेटजीज हैं. नंबर 1, प्री राइटिंग स्ट्रेटजीज आर मेनली यूज टू करेक्ट आंसर कौन सा होगा इनमें से? जनरेट एंड क्लैरिफाई आइडियाज. नंबर 2, another name for pre-writing strategies is brainstorming techniques. सॉरी ये वाला है, ठीक है ना. नंबर 3, which of the following is not pre-writing strategy? एडिटिंग, ये pre-writing strategies नहीं है. Number 4, how many pre-writing strategies are commonly used? 5. Number 5, the strategy that uses who, what, when, where, why and how is asking questions. ठीक है ना, ये 5 strategies हैं. ठीक है ना, इनमें से 5 strategies words हैं. Who, what, when, where, why and how is. ये कौन सा दुरुस्त ऑप्शन होगा? आस्किंग क्वेश्चन. इनमें से सवालात पूछे जाते हैं इन वर्ड्स के साथ. मिसाल के तौर पर वाई आर यू, वेयर आर यू फ्राम, या व्हाट इज़ योर नेम, या हु आर यू. ठीक है. 6 नंबर क्वेश्चन, प्री राइटिंग स्ट्रेटजीज आर मोस्ट हेल्पफुल फॉर ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज़. ठीक है. 7, द एक्टिविटी ऑफ राइटिंग विदाउट स्टॉपिंग टू जनरेट आइडियाज़ इज कॉल्ड फ्री राइटिंग, जिसको हम फ्री राइटिंग कहते हैं. नंबर 8, प्री राइटिंग स्ट्रेटजीज असिस्ट अ राइटर एंड डेवलपिंग टॉपिक्स. ठीक है, लिसनिंग के बारे में है. ये राइटिंग स्किल्स थी, इसके हवाले से क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके साथ शेयर किया. तो अब हम आते हैं लिसनिंग के बारे में. Listening is mainly used to collect many ideas quickly. Number 2, listening works best when the topic is broad. Number 3, listening is particularly useful for narrowing down a broad topic. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं. यहाँ पर क्लस्टरिंग है, ठीक है ना. SST जनरल MCQs बेस पर जो लेक्चर्स शुरू है, इसको आप इससे नोट्स बना सकते हैं, इसको कवर से भी देख सकते हैं. ये इंतहाई अहम और इम्पॉर्टेंट है, जो कि SST जनरल प्रिपरेशन के लिए इंतहाई अहम है. क्लस्टरिंग किसे कहते हैं? Clustering is also known as mind mapping idea mapping. ठीक है. The first step is clustering is to put the subject in the center of the page. Next number 3, when clustering the central idea should be circled or underlined. Number 4, new ideas in clustering are connected to the central ideas using lines. Number 5, the final product of clustering usually looks like a web. ठीक है ना. Number 6, clustering is particularly useful for determining relationships between ideas. Number 7, clustering is especially effective when there is abundance of ideas. अब फ्री राइटिंग के बारे में है. फ्री राइटिंग mainly involves writing non-stop for a set of time. Number 2, the usual time suggested for free writing is 5 to 10 minutes. Number 3, during free writing, if no idea comes to mind, you should keep writing anything without stopping. आगे बढ़ते हैं. Number 4, the main goal of free writing is generating ideas. ठीक है. Number 5, the process of repeating free writing with a together focus is called looping. Free writing is useful for narrowing down a topic. अब हम आते हैं the international phonetic alphabet. ये इंतहाई अहम टॉपिक है, ठीक है ना. इसको गौर से देखे, ये वाला ये इंतहाई अहम टॉपिक है, और इसको गौर से भी देख सकते हैं और इनसे नोट्स भी बना सकते हैं. चलो देखते हैं. नंबर 1, द इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट इज़ मेनली यूज्ड फॉर प्रोनाउंसिंग वर्ड्स. इंतहाई अहम सवाल है, ठीक है ना. द इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट इज़ मेनली यूज्ड फॉर प्रोनाउंसिंग वर्ड्स करेक्टली. Number 2, the IPA allows you to pronounce words from
any language, from any language, ठीक है। The current number of sound symbol in the IPA यानी इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट, IPA की ये शॉर्ट फॉर्म है, इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है यानी इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट, फोनेटिक यानी आवाज़। द करंट नंबर ऑफ साउंड सिंबल इन द IPA इज़ 17, ये इंतहाई अहम है। द IPA इंक्लूड्स हाउ मेनी डाइक्रेटिक्स एसेंट्स यानी 52। द नंबर ऑफ प्रोसोडिक मार्क्स एंटोनेशंस इन द IPA इन आई थिंक 5 है, मेरे ख्याल से ये 5 है। Question number 6. IPA symbol represent alphabets, phonemes, speech sounds. ठीक है। One major advantage of the IPA is that it show meanings of words, helps in correct pronunciation, helps in accurate pronunciation. आगे बढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक है हमारे पास यहाँ पर, तो देखते हैं इसमें कि अब हम आते हैं लॉन्ग वावल्स एंड शॉर्ट वावल्स। यहाँ पर शॉर्ट वावल्स दिए गए हैं और यहाँ पर लॉन्ग वावल्स दिए गए हैं, इसके बारे में बात करेंगे। शॉर्ट वावल्स आर वावल साउंड इन इंग्लिश दैट आर प्रोनाउंस्ड क्विकली एंड विद लेस टेंशन, यानी डायरेक्टली हम बोलते हैं जिसमें टेंशन कम हो, यानी ज़ुबान पे कम आना हो। इन द माउथ दे आर यूजुअली शॉर्ट इन ड्यूरेशन, नॉट हेल्ड फॉर लॉन्ग एंड डू नॉट हैव द कॉलन मार्क इन द इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट IPA। यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिए गए हैं चंद वर्ड्स। इन इंग्लिश द शॉर्ट वावल्स आर एस, ये शॉर्ट वावल्स है, ठीक है ना। एस एन कैट, मैप लफ, ठीक है ना। ई एस एन पेन, ब्रेड सेड, यानी ये शॉर्ट वावल, शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है ना, शॉर्ट अल्फ़ाबेट है। आई एस एन सेट, बिजी, सीयू, ये इज एन डॉग, स्विन, फाउट, ये सिंबल है, ठीक है ना, ये वाला फोनेटिक का सिंबल है, ठीक है। एस एन बुक, वोल्फ, वुड, ये ओ का जो सिंबल है, यानी इसकी साउंड जो है ये फोनेटिक का साउंड है। ए वाला यू वाला कप, मंकी, ब्लड, ठीक है ना। द IPA सिंबल AE इज रिप्रेजेंटेड इन वर्ड्स लाइक, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कैट प्लेड लव, ये इंतहाई अहम है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कंटेन्स द शॉर्ट वावल साउंड E, शॉर्ट वावल साउंड E एंड ब्रेड, बरी, फ्रेंड, सेड, ठीक है ना, ये इनके फोनेटिक साउंड है। द IPA सिंबल I कैन बी फाउंड, ये IPA सिंबल है, ठीक है ना, ये वाला, ये कहाँ पे मिले, जैसा कि इंग्लैंड, वमेन, बिजी, गेल, जेम, सीव। द शॉर्ट वावल साउंड, ये ए जैसा जो लग रहा है, अपीयर्स इन स्वान, ऑनेस्ट, मेवल, स्ला, फाउट। द शॉर्ट वावल साउंड, इसका जो शॉर्ट वावल साउंड है वो कैसा है, अपीयर्स इन वुल्फ, वुड, लॉक, बुश। विच वर्ड कंटेन्स द वावल साउंड ए जैसा जो लग रहा है, लग, मंकी, ब्लड, डबल। द ग्रिफेम्स ए आई यानी AU, ये ग्रिफेम्स है, ठीक है ना। इसका जो आर लिंक्ड विद विच वावल साउंड, ये कौन से वावल साउंड के साथ लिंक करता है, ये वाला बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, द वावल साउंड E, ये वाला कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय विच ग्रिफीम साउंड, यानी ये EA। विच शॉर्ट वावल हैज़ द ग्रिफीम सेट O, डबल OU, OU, ये कौन सा रिप्रेजेंट करता है, ये वाला सिंबल, ठीक है ना, ये रिप्रेजेंट करता है। चलो आगे बढ़ते हैं, लॉन्ग वावल की तरफ हम आते हैं। लॉन्ग वावल्स आर वावल साउंड इन इंग्लिश दैट आर प्रोनाउंस्ड फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन द शॉर्ट वावल्स, यानी लॉन्ग वावल साउंड, शॉर्ट वावल साउंड आपस में मुतसाद है। दे ऑफन रिक्वायर मोर टेंशन इन द माउथ एंड आर मार्क्ड विद अ कॉलन इन द इंटरनेशनल। इन इंग्लिश द मेन लॉन्ग वावल्स, जैसा कि आप आई देख लें, आई में C, B, मीट, ये लॉन्ग वावल है, ठीक है ना। यू वाला ब्लू, फ्लट, हु, ठीक है ना, ये यू का लॉन्ग वावल है। ए वाला इज आर्म, फादर, कार, जैसा कि ये वाला भी है, ये दोनों का, ठीक है ना, ये सिंबल्स है। बर्ड, टर्म, वर्ड, पा, बोर्ड, ठाट, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, द लॉन्ग वावल साउंड आई, ये वाला अपीयर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, बी, मीट, लेडी, की, फोनिक्स, ग्रीफ, स्काई, डिसीव, पीपल, क्वे। द ग्रीफीम्स double E-E-A-I-E are linked with which vowel sound, I, ठीक है। The IPA symbol U can be found in the word IPA sound, who, lawn, drew, blue, flut, shoe, throw, fruit, maneuver, group, ठीक है। The word who represent which long vowel sound, यहाँ पर कौन सा long vowel sound represent करता है, यहाँ पर I वाला, ठीक है।
सॉरी आई नहीं, ये बी वाला ऑप्शन दुरुस्त है। द IPA सिंबल ये वाला इज शोन एन आर्म, ठीक है ना, ये जाहिर करता है। डिप्थोंग, diphthong. A diphthong is a complex vowel sound in which the tongue moves from one vowel position to another within the same syllable. It is like gliding vowel because two vowels sound blend smoothly together as one. ठीक है, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं टाइम, माई लाइट, जैसा कि ये वाला, नाउ हाउस लाउड, जैसा कि ये वाला, बॉय कॉइन टॉय, ये वाला डे रेन से, ये वाला गो होम नोज। बस आज का ये लेक्चर काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपका कोई सवाल हो तो उनके हवाले से मैं वीडियो आपके लिए प्रिपेयर करूँगा। ये था क्लास सेकेंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर जो कि लेसन पर मुश्तमिल और एक्सरसाइज के साथ सॉल्वेड MCQs तकरीबन 150 से 52 MCQs बनता है। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।